So next question is. Good morning, sir. Okay, so do this, everyone. Next question. First, give your answer in the chat box and then note down the question in your copies. Sir, done. Sir, send. Sir, done. All of you listen. I'm Yes, making sir. some changes in the question. I want you all to give your answers again. थोड़ा सा change कर रहा हूँ question को. Okay. There Okay, are sir. Okay, sir. 16 boys between P and Q. And options मैंने हटा दिए यहाँ से. So now you do it. Okay. 16 boys between P and Q. Sir, given the answer. Okay. Don't consider those options which were given. Sir, given. Give it on your own. थोड़ा सा change किया मैंने. Okay. Sir, given. Okay. Okay, 2, 3 are left. Answer it quickly and then let's discuss the question. Sir, today, sir, the strength is not like tomorrow and day हाँ, before. आज बच्चे For strength yesterday and अच्छी है. yesterday. The last 2, 3 days the strength was
लिटिल ऑन द लोअर साइड, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था आज। चलो अच्छी बात है, पहले से तो काफी बेटर है। Sir, 19 students. Okay, so stop कर रहा हूँ मैं। Okay, I hope everyone is done. Yes, sir. Yes, sir. Okay, stopping it now. Okay, so question is, some boys are sitting in a row. P is sitting 14 from the left, 14 पोजीशन पर लेफ्ट से 14 पर P है, राइट से 7th पोजीशन पर Q है। 7th है 9th है, सॉरी 9th 7th, sorry Sir, 7th. Q is 7th from the right. If there are 16 boys between P and Q, P और Q के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? 16 है between P and Q. Okay, so total number of students बताने, how many boys Sir, are there? 37. 37. 37. plus 7 plus 16 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 14 plus 7 21 plus 16 is 37. 37 is the answer. इस बार कुछ +1 -1 ऐसा कुछ नहीं करना था, because you are P को काउंट करके अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड से P को इंक्लूड करके अगर हम काउंट करते हैं, there are 14, ठीक है। ऐसी राइट साइड से if we are counting Q also, then 7, 14 plus 7, and between P and Q 16, साफ साफ लिखा हुआ है between P and Q there are 16, मतलब P और Q के बीच में, and that means we are not counting P and Q। 16 जो बच्चे हैं उसमें P और Q काउंटेड नहीं है, उनके बीच में बोला है, between P and Q there are 16, so 14 plus 7 plus 16, 37 is the answer। Sir, can I ask something? Yes, please। Sir, yesterday we have done 6 questions, sir. I have not done, so answer is sir 27. Oh, 24. Sixth question, beta, what was the answer of the sixth question, all of you? Yes, sir, 24. Sir, 24. 24. Sir, 24. हाँ जी। Thank you, sir. So first is Please tell Alind, me. Alind ने दिया है, second is Utkarsh, third is Vidushi, fourth is Aditya Kumar, fifth Saksham, then कुछ गड़बड़ हो गए हैं आंसर्स, then Aditi, then Ansh Patel, उसके बाद कार्तिकेय, then Ridhima, Angel Gupta, Priya Gangwar, and बस इतना। So these have given the correct answers। Sir, why did you change the question? अभी मैंने कुछ सोच समझ के करा है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए, तो मैं यहाँ पर आज नए जो चेहरे हैं उनका नाम ले लूँ पहले। तो नए बच्चे कुछ आज ज्वाइन कर रहे हैं हमको। प्रिया, पायल कुछ दिन से नहीं थे। पायल इज नॉट देयर, पायल तो अभी ज्वाइन किया था आई थिंक। पायल ने कहाँ गई पायल? Karthik too. Yes, sir, I was preparing for my UT. वो Sir, मैं सुबह उठकर मैथ यूटी के लिए तैयारियां चल रही, क्लासेस छोड़ Yes, के sir. हैं? सर अगर सब फाइनल्स के लिए होता तो मान भी लेते। चलो कोई बात नहीं, चलिए नहीं सर, मैं सर उठकर मैथ ही करता था सबसे ठीक है, पहले ठीक है। सर 1 घंटा। ठीक है कोई बात नहीं। प्रिया बेटा, पायल joined the meeting in the starting, now she is not there I think, मतलब जहाँ तक तो मुझे साथ में पढ़ रहे हूँ। Sir, she is learning science. अच्छा साइंस पढ़ रही है। ओहो, मैथ्स और रीजनिंग की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, सब साइंस ही पढ़ते रहते हैं बच्चे हैं। सर रीजनिंग में 0 मार्क्स आएंगे। नहीं सर मैं मैथ पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, वो वीडियोस देख लेती होगी। Sir, मैं भी। सर मैं सबसे ज्यादा मैथ्स ही पढ़ता हूँ। देन और कौन है? यशराज आज आए हैं, यशराज ने अपना माइक कनेक्ट नहीं करा है। Sir, why they do not connect the mic? I don't know। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत इजी है, जल्दी से आंसर देना। नेक्स्ट वन,
start doing it. चलिए डन. Yes, sir. Sir, please Yes, don't sir. consider my first answer. Sir, given the answer. I thought it's written day. I thought it's written only yesterday. Yes, sir. Please consider my second answer. Sir, my also. Okay. So the answer is Wednesday. Yes. If day Yes, before sir. Yes, yesterday sir. was Saturday, day before The yesterday right answer is सैटरडे था तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा ये बताना है बस. डे बिफोर यस्टरडे अगर सैटरडे था दैट मींस टुडे इट्स मंडे. हम मंडे को Sir, Wednesday. एक मिनट बेटा पहले मैं समझा दूं. हाँ, हम कौन से डे पर ऐसा बोलेंगे कि डे बिफोर यस्टरडे इट वाज अ सैटरडे. मंडे को बोलेंगे ऐसा. yes, sir. अगर आज मंडे है देन व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन होगा. Sir, Wednesday. 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 Wednesday is the answer. So बता दें किन के सही हैं. आई थिंक सभी का सही होना चाहिए. बहुत इजी था. तो पहले दो आंसर गलत आए हैं. सो आलिंद फर्स्ट, सेकंड वेद, Okay, sir. थर्ड आदित्य कुमार, फोर्थ रिधिमा, फिफ्थ कार्तिकेय, देन उत्कर्ष, देन नव्या, देन अदिति, देन एंजल गुप्ता, चैतन्य, उसके बाद सक्षम, देन भव्या, देन प्रिया, के बाद कार्तिक चौहान, फिर मिश्रा जी. चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next.
Beta, I am giving you 2.5 minutes to write down the question and give the answer. दोनों काम करने के लिए 2.5 minutes total. So given the answer. Okay, time up. Sir, done. Those who have Well not, done. When did you give option? sorry, When did you give option? I first didn't look to options. But my answer is correct. yeah. So in a row of 30 boys, R is 4th from the right, W is 10th from the left. How many boys are there between R and W? तो 30 में से 4 इधर से हटा दीजिए, 10 उधर से हटा दीजिए. That means 14 आपको minus. 16. 16. 16. Yes, sir. 16. So ऐसा कुछ है question, कुछ ऐसा ही है. बस थोड़ा सा change कर दिया. R and W. R is, sorry. R is 4th from the right end. Right end ये वाला है. R यहाँ होगा. And W is 10th from the left end. Left end से 10th है W. R is 4th. And total जो students हैं, these are 30. ये total मिलाकर के 30 हैं. बीच में कितने होंगे ये आपको find करना है. So you can make an equation also. Equation की form में भी कर सकते हैं. 10 plus x plus 4 equal to 30. ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी सोच लो. W तक 10 है, R तक 4 है राइट साइड से. तो इधर से 10 हटा दीजिए, उधर से 4 हटा दीजिए. क्या बचेगा बीच में? 30 minus 10 minus 4, that means 16. 16. Sir, in reasoning exam, sir, we have to write a direct answer or we have to write with equations also. It will be MCQ based only. So you just, मुझे Okay, इसी से sir, मतलब है, I just want the answers. आप Okay, कैसे sir. लिखोगे, doesn't matter. Cheating allowed नहीं है, बस cheating नहीं करनी है. Okay, sir. Okay, sir. सर रीजनिंग में हम चीटिंग कैसे करेंगे? बेटा ऑफलाइन क्लास में हो सकता, ऑनलाइन में भी हो जाती है चीटिंग. तो बच्चे बहुत होशियार हैं, तो एक दूसरे से पूछ करके मतलब ऐसे कर लेते हैं. मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट्स आते हैं तो ऐसा कर लेते हैं. तो So please tell who was first. उत्कर्ष को फर्स्ट आंसर देने का बहुत क्रेज है. वेद इज फर्स्ट, सेकंड इज अदिति, थर्ड इज उत्कर्ष, फोर्थ अंश, फिफ्थ आलिंद, सिक्स्थ आदित्य कुमार, देन नव्या, देन सक्षम, then Bhavya, then Angel Gupta, then Chaitanya, Vidushi, Mishra ji, Kartike, Priya,
Karthik Chauhan. So all these have given the correct answers. Next question. And in the class of from the top. I pick up. मैं बेटा एक सेकंड में थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन कर रहा हूँ Okay, sir. so that it becomes a little good question because this ये वाला जो है बिल्कुल सेम था तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ okay? सर टफ कर दीजिए बहुत ज्यादा. सर रैंकिंग में आप कितने क्वेश्चन देंगे? Sir, I think 20. So 20 from ranking, 20 from direction. एक Not second. in exam. अच्छा राइट नाउ पता नहीं करते जाओ Yes, sir. सर बहुत कर और कराइए सर, मजा आ रहा है इसमें. Sir, when will you share the next question? बस बेटा अभी शेयर कर रहा हूँ मैं रेडी हो गया क्वेश्चन यस डू इट मतलब आई थिंक हैव यू डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर आल्सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन Sir sent the answer. ओके So this is you said so you are changing the question. So बेटा मैं ऐसा दूसरा क्वेश्चन same- नहीं थोड़ा सा वो बिल्कुल सेम था इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने सर बहुत कर रहे हैं सर, पिछला ही करा था. Okay, Sir. चलो कोई बात नहीं सर बस लेफ्ट और राइट क्लिक टॉप और बॉटम हो अगला गया. वाला थोड़ा डिफरेंट डीलिंग सर प्लीज गिव हार्ड. ओके
डन ऑल ऑफ यू? स्टॉप Yes, करो sir. No, sir. बेटा, Yes, स्क्रीनशॉट, इफ यू आर राइटिंग द क्वेश्चन टेक अ स्क्रीनशॉट. स्टॉप कर रहा हूँ. Sir, done. I hope you all have done. Okay. So then आ जाओ. Then आ जाओ. Sir, you directly. So क्लास के बच्चे बहुत चालाक हैं. चलिए कोई बात नहीं. वेद 32 wrong is the answer. answer. Ved wrong answer, Alind wrong answer, Utkarsh wrong answer, Aditya Mitra wrong answer, Anya wrong answer, Navya wrong answer, Ridhima wrong answer, Kartikeya wrong answer, Kartik Chauhan wrong answer, Aditya Kumar wrong answer, Aditi Gupta wrong answer, Anish Patel wrong answer, Satyam wrong answer, Chaitanya wrong, Vidushi wrong, Sir, please show Angel the wrong, question again. Riya wrong, Bhavya wrong. सबके आंसर गलत हैं. आप लोग The first बहुत time. चालाक हैं. आप लोग बहुत Sorry, चालाक sir, I got disconnected. Please tell the हैं. answer. All the students have given wrong answers. मैं ये बोला Sir, था. please don't tell The students of Sir, this Sir, class all? are very screen again. चालाक, but वो ये भूल गए कि मैं बहुत चालाक हूँ. Yes, sir. आप बहुत चालाक हैं. जब तुम देख रहे थे मैं 3 मिनट से बैठ करके क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो खुद को सोचना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ अलग दिया होगा, और उसके ऊपर से जान करके मैंने ऐसे बोल दिया कि अरे ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो और बच्चे मजे में आ गए हैं. अरे बहुत आसान क्वेश्चन है. सर उत्कर्ष की बेइज्जती हो गई. Yes, sir. The answer is उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आंसर है. दिखाऊं क्या दोबारा? Sir, fourth wala. Sir, which four Yes, sir. options? Sir, Can't no. be- The answer is option D, can't be determined. Sir, why? Sir, how? Sir, how? Okay, so I'm showing it now. Let me show how option D is correct. देखिए, the question is saying that there are M is 8th from the top. M की position top से 8th है. तो ये देखो, M is 8th, और उसके बाद कौन है दूसरा? H. H is 20th from the bottom. ठीक है, और इनके बीच में there are 4 students. तो एक तो आप कह सकते हैं कि 8 plus 20 plus 4 आंसर 32 हो गया आपके अकॉर्डिंग. ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है. Sir, answer is can't be determined. यस, ये ठीक है, बट ये गलत है. गलत कैसे है देखिए. M is 8th from the top. M की पोजीशन 8th है, ये लिख रहा हूं मैं. And H is 20th from the bottom. इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक there are 4 students. तो आंसर हो गया 20 plus 8 minus 4, that is 24. तो ये भी सही है. दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. द इंफॉर्मेशन गिवन हियर is not sufficient to give a answer any one of the two. We cannot choose any one of the two. So answer क्या होगा? D. ये समझ में आया? सेकंड टाइम में मैंने क्या करा, ये समझ में आया? Yes, You sir. gave No, sir. Sir, disconnect हो गया था, बता दीजिए. explain the second one. ओके, मैं एक सेकंड वाला समझा रहा हूँ क्या है. M बॉटम से, सॉरी टॉप से 8th है, और H बॉटम से 20th है. तो किसने ऐसा बोला कि H जो है वो M से ऊपर रैंक में नहीं हो सकता? मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए H की रैंक टॉप से 3rd है. H की रैंक टॉप से 3rd है, और M की रैंक टॉप से 8th है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर मान लीजिए H है, फोर्थ पर पता नहीं कौन है, और फिफ्थ पर कौन है, सिक्स्थ पर कौन है, सेवेंथ पर कौन है पता नहीं, 8th पर लेकिन M है. इनके बीच में कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं. और टोटल स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं क्लास में कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स अगर हम मान लीजिए 24 लगा देते हैं,
24. So yeah, 24 नहीं, sorry, टोटल स्टूडेंट्स क्लास में मान लीजिए या 22 हैं, 22, 24 नहीं 22 आएगा यहाँ पर, नॉट दिस विल बी 18 प्लस 8 माइनस 4, ये 22 होगा. सो कुल मिलाकर के बात ये, बोथ दी ऑप्शंस वुड बी करेक्ट. आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर H जो है वो M से ऊपर रैंक में, आप लोग ये सोच रहे हैं कि H की रैंक M के बाद आ रही है. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आंसर इज 32. ऐसा नहीं हो सकता कि H M से ऊपर है रैंक में, तब भी तो दोनों के बीच में 4 स्टूडेंट्स. Sir, understood. इज इट पॉसिबल और नॉट? ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है? Sir, possible. बिल्कुल हो सकता है. Sir, possible. There are 4 students. Sir, I was thinking you made changes That in is why the question, answer sir, is but it's cannot be easy. determined. So you said you are making changes in question, but when I saw the question, it was the same. Then I thought, what was sir doing? चलिए, गॉट इट. तो थोड़ा सा Yes, दिमाग sir. लगाना है. पीछे के क्वेश्चंस Yes, में sir. ऐसा नहीं हो सकता था. अभी पीछे भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कुछ कराया था, वेरी सिमिलर था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो सकता था. डू यू नो व्हाई? Sir, because it has a specific answer. वो वाला क्वेश्चन जो था उसमें 16 था, ऑप्शन में 16 था. सॉरी, क्या था? जिसमें मैंने वो 4 की जगह 16 करवाया था. कौन सा क्वेश्चन था वो? दैट वाज ये वाला, आई थिंक. ऑप्शंस हटवा दिए थे Sir, मैंने. 7th one. लेट मी शो. Yes, sir, 7th one, sir. That was also like The this only. 7th one. हाँ, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर P इज 14 और Q इज 7, तो उन दोनों के बीच में 16 स्टूडेंट्स पॉसिबल तभी हो सकते हैं जब P और Q, P टॉप से अगर देखें और Q बॉटम से अगर देखें, तो Q P के ऊपर नहीं हो सकता है इस केस में. तभी 16 बॉयज हो सकते हैं, वरना P और Q के बीच में 16 बॉयज नहीं आ सकते. तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर Because आप sir, बता Q is सकते 7th. हैं. तो सर अगर हम आगे भी लेके जाएंगे तब भी वो बस ज्यादा से ज्यादा 6 पे ही आएगा. So the difference would be 6. That is why this is the reason why इस क्वेश्चन में आप स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं और उस वाले में नहीं दे सकते थे. तो you So understand now I the know difference when between the two questions. Yes, sir. Now I know why you put it. made Sir, it when 6. the top and bottom words will come, then it can be different. तो That's इस Sir, mine. this वजह is से fifth question. आप लोग चला के मैं थोड़ा बहुत चला कैटेगरी में आ जाता हूँ, इसलिए I will give you the next question in the next class whenever we have it, tomorrow I think, or day after tomorrow. Yes, sir. Day Sir, after. this is fifth question. This was 7th I think.